Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read your chapter 3 of class 11th history. The topic is social hierarchy. Chapter 3, as you know, that an empire across 3 continents. In this chapter, we have discussed previous topics and we have already read about the political system, about the economic expansion, about geography, about slave condition, and today we are going to read social hierarchies. It means in this paragraph we are going to discuss about the social condition of the Roman Empire. Previous we have discussed the social conditions, nuclear family, women's property rights, main condition, and other important informations which we have read previously. Today we focus the hierarchies in the Roman Empire. Let's stand back from the details now and try and get a sense of the social structure of the empire. The Tacticus describe the leading social groups of the early empire as follows: senators, patres, lit fathers, leading a member of the equestrian class, the respectable section of the people, those attached to the great houses, the unkempt lower class, plebus sordida, who he tells us were addicted to the circus and theatrical displays, and finally the slave in the early 3rd century, when the Senate numbered roughly 1000, approximately half of all senators still came from the Italian families. By the late empire, which starts with the reign of the Constantine I in the early part of the 4th century. The first two groups mentioned by Tacticus, the senators and the equites, had merged into a unified and expanded aristocracy, and at last half of all families were of the Africans or Eastern origin. This late Roman aristocracy was enormously wealthy, but in many ways less powerful than the purely military elites, who came almost entirely from non-aristocratic backgrounds. The middle class now consisted of the considerable mass of persons connected with imperial services in the bureaucracy and army, but also the more prosperous merchant and farmers, of whom there were many in the eastern provinces. Tacticus described this respectable middle class and the clients of the great senatorial house. Now it was chiefly government service and dependence on the state that sustained many of these families. Below them, wherefore, the vast status that sustained many of these families. Below them were the vast masses of the lower class, known collectively as the humiliarious lit lower. They comprised a rural labor forces, of which many were permanently employed on the large estate, workers in the industrial and the mining establishment, migrants, workers who supplied much of the labor for the grain and olive harvest and for the building industry, self-employed,
artisans who it was said were better fed than wages laborers, a large mass of casual laborers, especially in the big cities, and of course the many thousands of slaves that were still found all over the Western Empire in particular. My dear student, let us stand back from the details now and try and get a sense of the social structure of the empire. आइए हम अब उन चीज़ों पर ध्यान दें, उन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करें, उन ब्यौरों को न देखकर साम्राज्य की सामाजिक संरचनाओं को जानने का प्रयास करें जो रोमन एम्पायर में था. So let us stand back from the details. Now try to get sense of the social structure of the empire. हमें सामाजिक संरचनाओं की जानकारी का प्रयास करना चाहिए. अभी तक हम लोगों ने सीनेट और सेंट्रल बोर्ड के बारे में पढ़ा. इतिहासकार टैसिटस ने प्रारंभिक रोमन साम्राज्य के बारे में और उनके प्रमुख सामाजिक वर्गों के बारे में, समूहों के बारे में वर्णन किया. वो लिखता है टैसिटस कि जो सामाजिक वर्ग थे उसमें सेनेटर, जिन्हें पैट्रस का अर्थ हुआ कि जिसका मीनिंग हुआ पिता, फादर, अश्वारोही, लीडिंग मेंबर ऑफ द इक्वेस्टेरियन क्लास लीड करते थे, अश्वारोही वर्ग के प्रमुख सदस्य, और जनता की सम्माननीय वर्ग जिनका संबंध उन महान घरानों से था जिनकी स्थिति दिन प्रतिदिन निम्नतर होती जा रही थी. और एक महान घरानों के बाद जो एक अच्छे वर्ग के लोग थे, अपर क्लास के लोग थे, और उसके अलावा जो तीसरा वर्ग था वो लोअर क्लास का था, जो बहुत ही नीची कामिनकारू, जिन्हें प्लेबस सार्डिडा कहा गया. ये लोग थिएटर में काम करते थे, सर्कस में काम करते थे, तमाशे दिखाने के आदी थे. और सबसे अंत में चौथा जो हायरार्की दिखती है वो दासों की दिखती है. इस प्रकार टैसिटस ने रोमन सोसाइटी को 4 भागों में डिवाइड किया. पहला कहता है सीनेटर्स, जिन्हें पैट्रस कहा गया, जिन्हें पिता कहा गया. दूसरा कहता है दूसरे वर्ग में इक्वेस्टेरियन मतलब अश्वारोही वर्ग, जो लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, योद्धा थे, दूसरे वर्ग में उनको रखता है. जो अपर क्लास के में माने जाते थे, जिनका संबंध उन महान घरानों से था जो कभी योद्धा थे. तीसरा वर्ग जो जो इसमें स्टेटस था, थर्ड स्टेटस के लोग में, कहता है ये लोग गरीब लोग थे, प्लेबस सॉर्डिडा, ये कमीनकारी लोग थे, काम करने वाले लोग थे, ये तीसरे वर्ग में थे आते थे. और चौथा वर्ग को दासों को करता है. कहता है इस प्रकार रोमन साम्राज्य 4 वर्गों में विभाजित था. पहले वर्ग में सीनेटर्स आते थे, दूसरे वर्ग में इक्वेस्टेरियंस आते थे, तीसरे वर्ग में जो वो लोग थे जो सामान्य वर्कर्स थे, प्लेबस सार्डिडा थे, और जो चौथा वर्ग था वो दासों का था. ये 4 वर्गों की बात टैसिटस अपने बुक में करता है, रोमन साम्राज्य के बारे में बताता है. और प्लेबस सार्डिडा के बारे में लिखता है कि ये लोग सर्कस दिखाते थे, तमाशे दिखाते थे, थिएटर में काम करते थे. इस तरह के जो निम्न काम कर था वो लोग करते थे. कहता है 3rd सेंचुरी के शुरुआत में, प्रारंभिक वर्षों में सीनेट के सदस्यों की संख्या लगभग 1000 के आसपास हो गई. और कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर अभी भी इटालवी मूल के थे, इटली से आते थे. साम्राज्य के परवर्ती काल में जो 4वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में कांस्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल में जो आरंभ हुआ, वो टैसिटस द्वारा उल्लिखित पहले 2 समूह, सेनेटर और नाइट या अश्वारोही या इक्वेस्टेरियंस की बात करता है. मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा. कह रहा था स्लेव्स, या थोड़ा और ऊपर से चलते हैं. ही टेल्स अस, टैसिटस टेल्स अस, were addicted to the आप यहाँ से देखिए. In the early 3rd century, when the senators number of roughly 1000
approximately half of all senators still came from Italian families by the late empire, which start with the reign of the Cons- Constantine first in the early part of the 4th century. कहता है कि तीसरी 3rd सेंचुरी के शुरुआत में प्रारंभिक 10 वर्षों में सीनेट के सदस्यों की संख्या 1000 के आसपास हो गई। कुल सीनेटरों में लगभग आधे सीनेटर अभी भी इटली मूल के थे, इटली परिवारों से थे। साम्राज्य के परवर्ती काल में, एम्पायर के जो साम्राज्य था उसका परवर्ती काल, पहले का बाद का काल, साम्राज्य के परवर्ती काल में चौथी शताब्दी के प्रारंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम का जो शासन काल था, इससे आरंभ हुआ। चौथी शताब्दी में कॉन्स्टेंटाइन का शासनकाल शुरू हुआ। टैसिटस द्वारा उल्लिखित पहले 2 समूह, जिसमें सेनेटर्स और इक्वेस्टेरियंस थे, ये एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात एरिस्टोक्रेसी बन चुके थे। 4th सेंचुरी तक आते आते फर्स्ट क्लास जो थे, प्रथम लेयर के सोसाइटी के पार्ट थे, जो पैट्रस थे, और जो दूसरे थे इक्वेस्टेरियन, दोनों एक साथ मिल गए और एक बड़े ब्यूरोक्रेसी के रूप में कन्वर्ट हो चुके, अरिस्टोक्रेसी के रूप में कन्वर्ट हो चुके थे। इन कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीकी अथवा पूर्वी मूल के थे। ये परवर्ती रोमन, ये लोग जो मिल करके ये हैड माइग्रेटेड इनटू द यूनिफाइड एंड एक्सपेंडेड अरिस्टोक्रेसी, and at least half of all families were Africans or Eastern origin. This late Roman aristocracy was enormously wealthy, but in any way less powerful than the purely military elites who came almost entirely from non-aristocratic backgrounds. कहता है कि जो परवर्ती रोमन थे, परवर्ती रोमन जो अभिजात वर्ग के अत्यधिक धनवान थे, पैसे तो खूब थे इनके पास, किंतु कई तरीकों से यह विशुद्ध सांस्कृतिक सम्भ्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली थे। जो एरिस्टोक्रेटिक वर्ग से लोग थे उनसे भी कम पावरफुल थे। क्यों? कहता है क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि, उनकी जो पावरफुल थे, अधिकतर अभिजात वर्गीय नहीं थे। जो लोग नए लोग जो धनी हुए थे, जो दोनों पैट्रस और इक्वेस्टेरियन से मिलकर जो बने थे, ये अभिजात वर्ग से नहीं थे, इट मीन्स अरिस्टोक्रेटिक वर्ग से नहीं थे। इसीलिए इनकी स्थिति अरिस्टोक्रेटिक वर्ग के लोगों से कम शक्तिशाली थी, कम पावरफुल थे ये लोग उनकी तुलना में। मध्यम वर्ग में अब नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे, किंतु उनमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे। कह रहा है 4th सेंचुरी में सामाजिक स्तर बदला। 4th सेंचुरी में जब कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट का शासनकाल आया, रोमन साम्राज्य का विभाजन में जो 4 स्तर दिखाई देते थे, अब वो 3 स्तर में बट गए। पहले स्तर में पहला और दूसरा स्तर जो 3rd सेंचुरी बीसी का था, जिसमें सेनेटर्स थे, जिसमें जिन्हें पैट्रस कहते थे, और दूसरा इक्वेस्टेरियन जो थे जिन्हें अश्वारोही कहते थे, वो दोनों एक साथ मर्ज होकर एक बड़े अभिजात वर्ग अरिस्टोक्रेसी में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद जो पूर्ववर्ती काल के लोग अभिजात वर्ग में थे, पूर्ववर्ती काल के लोग थे जो खूब धनी तो हुए, लेकिन ये लोग उस वर्ग में कमज़ोर थे। ये लोग भी अपर क्लास में ही थे। दूसरे वर्ग में वो लोग आते थे जिनकी पृष्ठभूमि अभिजात वर्गीय नहीं थी। कहता है ये लोग मध्यम वर्गों में नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे। जो ये सेकेंड वर्ग था उसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध कौन था? तो कहता है इसमें जो मर्चेंट्स थे, इसमें जो ट्रेडर्स थे, और इसमें जो बिग पीजेंट्स थे, वो लोग शामिल थे जो ज़्यादा प्रॉस्परस थे, समृद्ध थे सेकेंड क्लास में। किंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध जो था, अधिक जो प्रॉस्परस था, वो जो मर्चेंट थे। ये लोग मोस्टली जो धनी लोग थे वे पूर्वी प्रांत के निवासी थे। टैसिटस ने इन सम्माननीय मध्यम वर्ग को महान सीनेट गृहों के आश्रित क्लाइंट्स के रूप में वर्णन किया है।
कह रहा है जो ये लोग मध्यम क्लास के लोग थे, ये लोग क्लाइंट्स थे सीनेट्स के। मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता ही इन मध्यम वर्गीय परिवारों का भरण पोषण करती थी। ये बेसिकली गवर्नमेंट जो ऑक्यूपेशंस थी, जो जॉब्स थे, उससे ये लोग रिलेटेड थे। इनका भरण पोषण, इनका सारा ऑक्यूपेशन इन्हीं पे डिपेंड था। इसीलिए कहता है ये लोग क्लाइंट्स थे किसके, सीनेट के। ये लोग किसी न किसी रूप में अपनी सेवाएं सीनेट को दे रहे थे, जो मध्यम क्लास के लोग थे, जो सेना के लोग थे, जो कम समृद्ध लोग थे, जो प्रथम क्लास के। इसके नीचे भारी संख्या में निम्न क्लास के लोग आते थे। इनका एक बड़ा समूह था, सबसे बड़ा ग्रुप इन्हीं का था, जिन्हें सामूहिक रूप से ह्यूमिलियोरियस यानी निम्नतर वर्ग कहते थे। ह्यूमिलियोरियस मार्क कर लीजिएगा, ये जो सबसे बड़ा वर्ग था रोमन में, इसे ह्यूमिलियोरियस कहा गया। ये निम्नतर वर्ग कहा जाता था। इसमें ग्रामीण श्रमिक वर्कर्स, जो इसमें विलेज वर्कर्स आते थे, शामिल थे, जिन्हें बहुत से लोग स्थायी रूप से बड़ी जागीर में नियोजित थे, बड़े बड़े खेतों में, बड़े बड़े फार्मों में काम करते थे ये वर्कर्स। कहता है कि औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों में काम करते थे, फैक्ट्रीज में काम करते थे, इंडस्ट्री में काम करते थे। और इसके लिए प्रवासी कामगार जो अनाज और ओलिव के लिए, फसल की कटाई के लिए, निर्माण उद्योग के लिए इनका अधिकांश श्रम पूर्ति यहीं से होती थी। मतलब कहता थर्ड क्लास से जो लोग आते थे, जिनको हिलेरियस कहा गया, निम्नतर वर्ग कहा गया, इन लोगों का मेन काम था कि खेतों में बड़े पैमाने पे अपना योगदान देना, अपने श्रम का योगदान देना, इंडस्ट्री में सहयोग करना, इंडस्ट्री में एज ए वर्कर हेल्प करना। इनको डेली वेजेस मिलते थे। एक बड़ा वर्ग था इनका। ग्रामीण लोग इसमें शामिल थे। ये लोग फसल की कटाई करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे और अपने स्वनियोजित आर्टिसियंस भी इसमें आते थे। ऐसा बताया जाता है कि मजदूरी पाने वाले लोग, मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में बेहतर खाते पीते थे ये लोग। ये बहुत बड़ी संख्या में कभी कभी काम करने वाले श्रमिक, विशेषकर बड़े शहरों में वस्तु हजारों गुलाम, जो विशेष रूप से पूरे पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते थे, आते थे। कहता है इस प्रकार इस जो निम्नतर वर्ग है, जो ह्यूमिलियरियस वर्ग है, इसमें जो लोअर वर्ग है, इसमें एक बड़ा वर्ग है जिसमें किसान हैं, जिसमें वर्कर्स हैं, जिसमें दास हैं, जो समय समय पर अपनी सेवाएं लगभग हर आर्थिक क्षेत्रों में दे रहे हैं। चाहे वो खेती हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे फसलों की कटाई हो, चाहे वो अपना श्रम हो जो किसी चीज़ के निर्माण में हो, इस जगह पे ये काम कर रहे हैं। इसमें सब आ रहे हैं, किसान हैं, वर्कर्स हैं, और इसमें वो वर्ग भी है, दास भी है। कहता है इनकी स्थिति उन लोगों से अच्छी है जो डेली वेजेस पाते थे। ये अच्छे से खाते पीते हैं और आराम से जीवन अपेक्षाकृत जीते हैं उनकी तुलना में। कहता है 5th सेंचुरी के आसपास प्रारंभिक काल में इतिहासकार ओलंपियोडोरस ने, जो एक राजदूत भी था, लिखा है कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी। इसमें वह उपज शामिल नहीं थी जिसका उपभोग वो सीधे कर लेते थे। परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई, क्योंकि स्पेन को खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी और सरकार के पास चांदी की मुद्रा प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं थी। इसलिए चांदी का प्रचलन, चांदी को मुद्रा के रूप में प्रचलन धीरे धीरे खत्म होने लगा, कम होने लगा। कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और प्रवर्ती समूचे पूरा काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन कराया। सोने की मुद्राएं चलने लगी चांदी की मुद्राओं की जगह, क्योंकि चांदी 3rd सेंचुरी के बाद उनका स्टोर खत्म होने लगा। स्पेन की खानों से चांदी मिलना बंद हो गया, तो सोने की मुद्रा कॉन्स्टेंटाइन को चलानी पड़ी। देखिए करी वन राइटर ऑफ द अर्ली 5th century, the historian Olympiodorus, who was also an ambassador, tells us that aristocracy based in the city of Rome drew annual income up to 4,000 ives of gold from their estate, not counting the produce the consumed directly। वही चीज़ें कह रहा है कि चांदी मिलनी बंद हो गई,
इसलिए कॉन्स्टेंटाइन को सोने की मुद्राएं चलानी पड़ी। ये नई मौद्रिक प्रणाली थी, एक नए तरीके के कॉइनेज था जो रोमन एम्पायर में चला और पुराकाल की मुद्राओं पर भारी मात्रा में इसका प्रचलन हुआ। बाद में सोने की मुद्राओं का बड़ा प्रचलन रहा, बड़ी मान्यता रही। कह रहा है द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी बोथ द हायर एंड द मिडिल equivalence was the comparatively affluent groups because it drew the bulk of its salary in gold and invested much of this up buying up assets like land. There was, of course, also a great deal of corruption, especially in the judicial system and the administration of military supplies. The extortions of the higher bureaucracy and the greed of the provincial governor were proverbial, but government intervened repeatedly to curb this form of the corruption. We only know about them in the first place because of the law that tried to put an end of the intelligentsia denounce such practices. The elements of criticism, its remarkable feature of the classical world. The Roman state was authoritarian regime. In other words, dissent was rarely tolerated and government usually responded to protest with violence, especially in the cities of the east where people were often fearless in making fun of emperors. Yet a strong traditions of Roman law had emerged by the 4th century, and this acted as a brake on even the most famous emperor. Emperors were not free to do whatever they like, and the law was actively used to protect civil rights. That is why in the later 4th century it was possible for powerful bishops like Ambrose to confront equally powerful emperors when they were excessively harassed or the repressive in their handling of the civilian population. In this paragraph, author want to inform you about that the Roman bureaucracy and the emperor conditions. Someone would take fun, मजाक में राजा की स्थिति को लेते थे, उनके बारे में बताता है। कहता है कि किस तरीके से राजा के ऊपर लोग मजाक उड़ाते थे। पहले देखिए, कहता है द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी बोथ द हायर एंड मिडिल इन। कहता है रोमन साम्राज्य में परवर्ती काल में वहाँ की जो नौकरशाही थी, नौकरशाही के उच्च तथा मध्य वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे। जो मिडिल क्लास थी, जो अपर क्लास थी, वो काफ़ी प्रॉस्परस थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था, गोल्ड के रूप में मिलता था। गोल्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट के समय स्पेन में चांदी खत्म हो गई। जब चांदी खत्म हो गई तो कॉन्स्टेंटाइन को सोने की मुद्रा चलानी पड़ी, और इस सोने की मुद्रा में जो सैलरी मिलती थी इस वर्ग को, जो हायर और मिडिल क्लास के लोग थे, उससे ये लोग काफ़ी समृद्ध हो गए, प्रॉस्परस हो गए, वेल्दियर हो गए, इनकी आमदनी बढ़ गई। ये अपने आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन जैसी संपत्तियां खरीदने में लगाने लगे, बड़े बड़े लैंड फार्म खरीदे और फिर उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में खूब भ्रष्टाचार भी फैला, करप्शन भी फैला, विशेष रूप से जुडिशियल सिस्टम में, सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन में, मिलिट्री सप्लाई में खूब करप्शन फैला। उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट खसोट और लालच के लिए कुख्यात हो गए। लेकिन सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए बार बार हस्तक्षेप किया। करप्शन बड़े पैमाने पर न फैले
इसलिए गवर्नमेंट ने कई सारे एक्शन लिए, बट द गवर्नमेंट इंटरवेंट रैपिडली टू कर्ब दिस फॉर्म ऑफ द करप्शंस. वी ओनली नो अबाउट देम इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज ऑफ द लॉ दैट ट्राई टू पुट इन टू देम. प्रशासन ने कई बार प्रयास किया, बार बार प्रयास किया कि भ्रष्टाचार को रोका जाए. इस भ्रष्टाचार के जो फैले हुए स्वरूप को रोकने के लिए सरकार ने कई बार हस्तक्षेप भी किया. इस संबंध में हमें पता चलता है कि सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए, अनेक लाभ पास किए गए. साथ ही आलोचना का यह तत्व जो अरिस्टोक्रेसी के पास था, अभिजात्य एवं श्रेष्ठ जगत की उल्लेखनीय विशेषता है. करप्शन जो हो रही थी ये कौन कर रहा था? ये अपर क्लास के लोग ही कर रहे थे. सरकार ने कानून बनाए, कानूनों को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन फिर भी इसकी आलोचना हुई. रोमन साम्राज्य, रोमन राज्य डिक्टेटरशिप पे बेस्ड था, तानाशाही पे आधारित थी. यहाँ असहमतियों या आलोचनाओं को कभी कभी ही बर्दाश्त किया जाता था. द रोमन एम्पायर वॉज बेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप. That is the very important things. The elements of criticism is remarkable features of the classical world. The Roman state was authoritarian regime. Roman status was a dictatorship regime. In other words, dissent was rarely tolerated. जो बातें जो कोई इनकी आलोचना करता था, जो कोई इनसे असहमति जताता था, उसे कभी कभी बर्दाश्त किया जाता था. आमतौर पर सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी. यदि कोई विरोध करता था तो उसको बड़े ही क्रूरता से दबा दिया जाता था. विरोध करने का मतलब सीधे हत्या कर देना था. विरोधियों की हत्या प्रशासन के द्वारा, कहता है, दबा देती थी. विशेष रूप से पूर्वी भाग के शहरों में जहाँ लोग अक्सर निडर होकर सम्राट का मजाक उड़ाया करते थे. कहता है, इसके बाद भी जो ईस्टर्न फ्रंटियर के लोग थे, पूर्वी प्रांत के लोग थे, वो लोग प्रायः राजा का मजाक उड़ाते रहते थे. इन लोगों को, इनके मजाक और इनके क्रिटिसिज्म को प्रशासन, राजा कभी माफ़ नहीं करता था और उनको बड़े ही बर्बरता से इनका दमन कर देता था. इट इज स्ट्रांग ट्रेडिशंस ऑफ द रोमन लॉ हैड इमर्ज्ड बाय द 4th century and this acted as a break of even most the fearsome emperors. तथापि 4th century तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था. इसमें सर्वाधिक भयंकर बात यह थी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, डराने वाली बात यह थी कि सम्राट पर भी अंकुश लगाने का काम किया गया था. सम्राट लोगों पर अब अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सिटीजनशिप कोड के लिए जो कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाने लगा रोमन एम्पायर में. इसलिए 4th century का अंतिम जो डिकेड्स थी उसमें एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली बिशपों के लिए यह संभव हो पाया. यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाए तो बिशप भी उसे उतनी ही शक्ति से उसका मुकाबला करे. मतलब 4th century में परिवेश बदला, स्वरूप बदला रोमन एम्पायर का. हम सोशल हायरार्की में देखें कि 3rd century में रोमन एम्पायर 4 पार्ट में बटा. 4 पार्टों में हमने बात किया कि उस 4 पार्ट में वो लोग थे जो पहले सीनेटर्स थे जिन्हें पिता के रूप में माना गया, और इक्वेस्टेरियंस थे जो दूसरे वर्ग अश्वारोही माना गया. तीसरा वर्ग वो था जिसमें मध्यम क्लास के लोग थे जो तमाशे दिखाते थे, जादू दिखाते थे, नाच गाने करते थे. और चौथा दासों का वर्ग था. 4th century तक आते आते कांस्टेंटाइन का काल आते जाते ये इस सोशल हायरार्की में, सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव आया. समाज 3 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है. प्रथम और दूसरे वर्ग के लोग मिलकर के एक वर्ग में बन गए. ये वर्ग अरिस्टोक्रेसी कहलाई. ये वर्ग अभिजात्य वर्ग कहलाया जिसमें पैट्रस और एक्विस्टेरियन वर्ग के लोग थे, जिसमें सीनेटर्स और एक्विस्टेरियन स्वारोही वर्ग के लोग थे, योद्धा वर्ग के लोग थे. ये ज़्यादा पावरफुल थे, शक्तिशाली थे. यद्यपि इनकी तुलना में एक नया वर्ग जो संभ्रांत था,
एक नया वर्ग जो अधिक धनी था, जो पूर्वी प्रांत के लोग थे, लेकिन वो इनकी तुलना में कम पावरफुल थे। इन लोगों को प्रथम वर्ग में रखा गया, फर्स्ट लेयर में रखा गया, सोसाइटी की सोशल स्ट्रक्चर के फर्स्ट पार्ट में। 4th सेंचुरी में जो दूसरा वर्ग था, उसमें बड़े पैमाने पे मध्यम क्लास के लोग आए, मिडिल क्लास के लोग। ये मिडिल क्लास के लोग बेसिकली ये वो लोग थे जो क्लाइंट ऑफ सीनेट थे। इनके सारे काम, इनका सारा वर्क सीनेट से जुड़ा हुआ था। ये अपनी सेवाएं सीनेट को देते थे, मिलिट्री सेवा हो या क्लर्कियल सेवा हो या असिस्टेंट के रूप में काम करने की व्यवस्था हो। ये लोग वो वर्ग के थे, ये मिडिल क्लास में थे। और हिलेरियस कहा गया एक वर्ग को, ह्यूमिलेरियस कहा गया जो निम्नतर वर्ग था। ह्यूमिलेरियस वर्ग को कैटेगराइज कर दिया गया 3 पार्ट में, एक वर्कर्स, एक पीजेंट्स और एक दास। ह्यूमिलेरियस वर्ग में 3 बड़ा ग्रुप था, ये सबसे बड़ा ग्रुप था। इसमें सबसे बड़ी संख्या में लोग आते थे। इस वर्ग में सारी रोमन इकोनॉमी इन्हीं के द्वारा कामों पे बेस्ड थी, निर्भर थी। ये लोग इंडस्ट्री, फैक्ट्री में अपना श्रम देते थे, अपनी सेवाएं देते थे। ये लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग में, फसलों की कटाई करने में, खेतों की गुड़ाई करने में, फलों को तोड़ने में महत्वपूर्ण रोल निभाते थे। खेती बाड़ी भी करते थे। और तीसरा जो दासों का वर्ग था, इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे हर जगह किया गया। कहता ये जो वर्ग था, ये कमाना और खाना नॉर्मली उतना पाते थे जितना इसके पेट भर जाता था, और ये अपनी लाइफ को जीते थे। इसके बाद कहता है कि रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर में बदलाव आया। 4th सेंचुरी में ऑगस्टाइन का एज था, वहाँ पे हमें कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। चेंजेस क्या था? कहता है ये चेंजेस एक प्रकार से दिखता है कि साम्राज्य जो डिक्टेटरशिप चलती थी रोमन साम्राज्य में 4th सेंचुरी तक आते आते, यहाँ पे किसी को भी अधिकार नहीं था कि वो राजा या राज्य की विरोध करे, आलोचना करे, क्रिटिसाइज करे। जो करता था उसको बड़ी बर्बरता के साथ उनका दमन कर दिया जाता था। स्पेशली कहता है कि पूर्वी भाग के शहरों के लोग जो अक्सर राजा सम्राट से लीडर होकर उनका मजाक उड़ाया करते थे, उनका ये दमन कर देते थे। कोई बड़ी बर्बरता से, ब्रूटली उनको ग्रेट असैसिनेशंस होती थी वहाँ पे रोमन एम्पायर में इनके लिए। कहता है एडमिनिस्ट्रेशन में खूब करप्शन भी दिखाई देता है, भ्रष्टाचार। चूँकि 4th सेंचुरी तक आते आते चांदी, स्पेन में चांदी की खान से चांदी खत्म हो चुकी थी, और राजा को अब जरूरी था कि अपने क्वाइनेज सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए सोने की मुद्राएं चलाई। जब उसने सोने की मुद्राएं चलाई तो 4th सेंचुरी में रोमन एम्पायर में जो ये मिडिल क्लास के लोग थे, ये काफ़ी प्रॉस्परस, समृद्ध हो गए, धनी हो गए। क्यों? क्योंकि जिन्हें सैलरी मिलती थी वो सोने के रूप में मिलती थी। और ये जब धनी हो गए तो उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट ज़मीन खरीदने में किया, लैंड को बड़े पैमाने पे लैंड में इन्वेस्टमेंट किए। करप्शन बढ़ा, करप्शन पे राजा ने कई बार रोक लगाई, लेकिन करप्शन नहीं रुका। राजा इसमें पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ, सम्राट इसमें पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ। समय समय पे इसमें बहुत सारे काम लिए गए, स्टेप किए गए, लेकिन पूरी तरीके से। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि सोने की ये मुद्रा रोमन की मतलब बाद के कालों में बड़ी फेमस हुई, उसकी इंपॉर्टेंस बनी रही। कहते जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ 4th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते वो ये था कि अब कानून जो पास किए गए, उस कानून में सम्राट के ऊपर भी कंट्रोल किया गया। अब सम्राट लोगों पर अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। वो नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून जो पारित किए गए थे उनको मानने के लिए बाध्य था। इसलिए 4th सेंचुरी के अंतिम दशकों में एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली जो बिशप था, एम्ब्रोस नामक एक बिशप आया, उसको इतना अधिकार मिला है, उसे इतना बल मिला इन कानूनों के थ्रू, यदि वो राजा बड़े पैमाने पे लोगों की हत्या करे क्योंकि लोग उनको राजा को क्रिटिसाइज कर रहे हों, तो राजा के अगेंस्ट भी स्टेप लेने का राइट्स एम्ब्रोस जैसे बिशपों को मिल गया। तो इस तरीके से हम एक बड़ा बदलाव
जो सोशल हायरार्की में देख रहे हैं वो दिखाई देता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे लेट एंटिक्विटीज़ पे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।